Hello everyone, welcome to my channel Mission Science. In today's video, I am going to discuss Coulomb's law. Actually, the Coulomb was the scientist who did many experiments for finding out the force experienced by the charged bodies. That if the bodies are charged, that means if the bodies have charges, then how can we calculate the force between those charges? Right? As this concept of force of interaction between the charged body is given by the Coulomb, that's why the name was Coulomb's law. He stated that the force of interaction between two charged body, it is directly proportional to the product of charges. If we are considering Q1 and Q2 as the charges, then the force of interaction is directly proportional to the product of charges. And secondly, he said that the force of interaction is inversely proportional to the square of distance between them. Let's see diagrammatically if they are two bodies A and B. Let us suppose A has charge Q1 and B has charge Q2, and they are placed at a distance of r from each other. So in this case, the force will be Q1 Q2 upon r square. Now if we remove the proportionality sign, in place of proportionality sign we have to use some constant. Let it be K, where K is known as constant of proportionality, and here it is known as electrostatic force constant. It is electrostatic force constant. As we are discussing about the electrostatics, and this constant appear in the formation of force, that's why the name of this constant is electrostatic force constant. And this is the formula for the force of interaction. If we want to find out that how much force is experienced by the charges, then we'll make use of this formula. Now let's find out first the values of the K. कि जो K है आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, इसकी SI यूनिट में क्या वैल्यू होगी और इसकी CGS यूनिट में हमारे पास क्या वैल्यू होगी, वो हम फाइंड आउट करते हैं. देखो, सबसे पहले अगर हम CGS सिस्टम की बात करते हैं तो ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि if in a question it is written that find out the force of interaction in CGS system, तो अगर CGS सिस्टम मेंशन है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ वैल्यू K इक्वल्स टू 1. जो K की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है CGS सिस्टम में. बट इन केस ऑफ SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ये इसकी वैल्यू होती है. अब आती है कि इसकी यूनिट्स क्या हैं. इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब देखो ये कैसे हमने डिराइव किए हैं. आपके पास ये फॉर्मूला है फोर्स का. इस फॉर्मूला से आप इजीली K के यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो. अब देखो कैसे करेंगे. ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आप K निकाल सकते हो. देखो K की वैल्यू क्या आएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2. F की यूनिट न्यूटन, distance is in meter squares, and unit of charge is coulomb into coulomb. So from here we get the unit Newton meter square per coulomb square. ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर सकते हैं SI सिस्टम में. एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एब्सोल्यूट permittivity in free space. ठीक है, आपके पास दो टर्म्स होती है. वन इज परमिटिविटी एंड अनदर इज परमिएबिलिटी. परमिटिविटी का मतलब ये होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, मटेरियल में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. ठीक है. और जो हमारे पास परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी क्या बताती है? वो हमारे पास इसका ऑपोजिट होती है. जैसे ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है, वो हमारे पास बताता है कि कैसे हमारे पास कंडक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा. राइट. तो अब हम इसकी वैल्यू भी इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी
यहाँ पे मैंने नोट लगाया है। ये जो नोट है ये रिप्रेजेंट करता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे मैं ये नोट नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूंगी, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम, कि हमारे पास किस मीडियम में बात हो रही है। बट हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नोट यूज करते हैं। अब देखो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से देखो एप्सिलॉन नोट क्या आ जाएगा, 1/4πk। अब पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3.14 होती है। के की वैल्यू अभी ऊपर लिखी थी हमने 9 × 10⁻⁹। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ जाती है 8.85 × 10⁻⁻12। और यूनिट्स क्या बन जाएंगी, जो के की यूनिट्स हैं उसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, कूलम स्क्वायर। ये आपके पास एप्सिलॉन नोट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो हमने क्या देख लिया अभी तक कि एक्चुअल में जो कूलम साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, जो चार्ज बॉडीज हैं, टू चार्ज बॉडीज के बीच में कितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगती है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टू चार्ज बॉडीज में। अब ये हमने सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट किया, बट वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है F इज K(Q1Q2)/r², यही फॉर्मूला अगर हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वो अब हम देखते हैं कि वेक्टर नोटेशन में हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है, जो हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो वेक्टर फॉर्म है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपना कार्टेशियन प्लेन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर दिया है XYZ में। ठीक है, A एंड B दो चार्ज बॉडीज कंसीडर की है। A हैव चार्ज Q1 एंड B का चार्ज क्या है, Q2 है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, A के लिए क्या है R1 एंड B के लिए क्या है R2। सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर कि OA वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, एंड आपके पास OB वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। और चीज देखो, हमने यहाँ पे F12 वेक्टर लिखा है और एक F21 वेक्टर लिखा है। अब इनका मतलब देखते हैं ये क्या मतलब होगा। देखो जो आपके पास F12 वेक्टर है, F12 वेक्टर का मतलब होता है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्योंकि देखो दो बॉडीज हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, फोर्सेस लगाएंगी। तो जब A बॉडी पर B फोर्स लगाएगी 1, जब 2 के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे, F12 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन 1। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। सेम वे में हम क्या बोल सकते हैं कि F21 वेक्टर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, कि Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन फोर्स लगा रहा है, 1 फोर्स लगा रहा है। तो हमने ये चीजें देख ली। सेकेंड, अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, R12 वेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास पार्टिकल A B के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस भी तो होगा, कि दो पार्टिकल्स को हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, हम यही देखते थे ना अभी कूलम्स लॉ में, क्या देखा था कि A बॉडी ये है, ये B बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे केस में A बॉडी क्या है, Q1 है, B बॉडी पर चार्ज क्या है, Q2। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, R12 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। राइट, तो अब हम देखते हैं, अब आपके पास इनकी वैल्यूज देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें हम वेक्टर रूल लगाएंगे, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। देखो कैसे लगेगा। इस ट्राइंगल को मैं सेपरेटली बना के दिखाती हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे है, ये हमारे पास ओरिजिन था, दिस इज R1 वेक्टर, ये A पॉइंट था। ऐसी ये हमारे पास R2 वेक्टर है, ये B पॉइंट, और ये A से B आने में डिस्टेंस कितना है, R12 वेक्टर। वेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलती है, हमने क्या करना होता है, एरोज का ध्यान रखना है।
अगर एरोस हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्लो में है तो सभी में प्लस साइन आएगा, अगर एरो बीच में डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है तो उसमें साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। देखो कैसे, हम यहाँ से स्टार्ट हुए मूव होना, तो एरो की डायरेक्शन अपवर्ड थी, फिर उसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो एरो भी इधर ही आना चाहिए, और जब हम इधर आते हैं तो एरो इस साइड होना चाहिए था, टूवर्ड्स द लेफ्ट, बट एरो कहाँ दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड दिख रहा है। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आपने सिर्फ क्या चेक करना है, एक फ्लो चेक करना है। आप उसको चाहे तो क्लॉकवाइज चेक कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बट एक साइक्लिक ऑर्डर बनना चाहिए। ऐसे अब मैं ऐसे मूव कर रही थी तो ये ऑर्डर ऐसे ही फ्लो करना चाहिए, बट यहाँ तक फ्लो कर रहा था लेकिन यहाँ पे आते ही एरो चेंज हो गया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। तो यहाँ से आप r12 वेक्टर निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं ऐसा कर दूं, ये तो आपके पास r1 वेक्टर ही है, ये आपके पास r2 वेक्टर है। अब मैं ऐसे एरो लगा दूं इधर, क्योंकि एरो तो किसी भी साइड आपका लग सकता था ना। जब मैंने A से B में एरो लगाया था तो मैंने क्या लिखा था, डिस्टेंस r12, क्योंकि ये 1 था ये 2 था। अब मैंने B से A पर लगाया है तो अब इसमें क्या लिखूंगी, r21 वेक्टर लिखेंगे। तो अब इसमें भी सेम फ्लो में आप चेक कर सकते हो। यहाँ मैंने कैसे किया था, क्लॉकवाइज चेक किया था, यहाँ मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लेती हूँ। देखो कैसे, O से B तक गए, देन B से A तक गए, एरो का फ्लो सेम था, बट जैसे यहाँ पर आई मैं, यहाँ पे एरो का फ्लो डिफरेंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज 0, और यहाँ से r21 वेक्टर क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये डिस्टेंसेस निकालने इंपॉर्टेंट थे, क्यों, क्योंकि इसके बिना आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं निकाल सकते हो। तो हमने डिस्टेंस निकाल ली। सेकेंड थिंग, अभी आपको टॉपिक का नेम क्या बताया मैंने, वेक्टर फॉर्म में हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आप फोर्स निकालोगे उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें पता चलती है यूनिट वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। कैप, ये जो ऊपर ट्राइंगल बनाते हैं इसको हम कैप बोलते हैं, और एन शो कर रहा है कि जिस भी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। तो एन कैप क्या होता है, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास अगर हमें r12 कैप निकालना है तो वो क्या निकलेगा, r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर। ऐसे ही r21 कैप अगर आपको निकालना है तो वो कैसे होगा, r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वेक्टर। ये हमने दोनों क्या लिख लिए, सिंपल यूनिट वेक्टर्स लिखे हैं, क्योंकि इनको हमने अभी यूज करना है अपनी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी आपको मैंने क्या बताया था कि दो फोर्सेस लग रही हैं, आपके पास F12 फोर्स लग रही है और एक F21 फोर्स लग रही है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक फोर्स को पहले हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो लेट अस सपोज वी आर कैलकुलेटिंग दी F21 फोर्स, हम F21 कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम F21 फोर्स लगाए कैलकुलेट करेंगे, इस फोर्स का मतलब क्या था कि A B के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का A से B तक का डिस्टेंस क्या है, R12 वेक्टर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे कि F21 वेक्टर, ये क्या होगा, कांस्टेंट K आएगा सबसे पहले, चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड भी लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, R12 कैप। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर
कि F21 है, ये चीज थी F21 वेक्टर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि A से B, A B पर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, A से B होगी। A से B क्या है हमारे पास, R12 वेक्टर है, और R12 वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को अभी हमने लिखा, किससे डिनोट किया था, R12 कैप से किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, R12 कैप लिखा है। इसके साथ आप लिख भी सकते हो अलोंग AB। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा K Q1 Q2। R12 वेक्टर का मतलब हमारे पास क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और R12 कैप का मतलब क्या है, R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, एंड दिस इज अलोंग AB। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए आ गया है, F21 वेक्टर आ गया, दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलर बेसिस पे अब आप क्या कर सकते हो, F12 भी निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा वो देखो, अगर F12 निकालना है तो ये होगा K Q1 Q2। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पर ध्यान से, अब F12 का मतलब क्या होगा, B फोर्स लगाएगा A के ऊपर। जब B A पर फोर्स लगाएगा तो B से A जाने का डिस्टेंस अभी हमने यहाँ पे बताया था, क्या था, R21 वेक्टर था। ठीक है, तो अब हम नीचे इसमें क्या लिखेंगे, नीचे R21 वेक्टर का स्क्वायर और डायरेक्शन में R21 कैप, और ये हो जाएगा अलोंग BA। अब सेम वैल्यू पुट कर सकते हो आप इजीली, ये क्या आ जाएगा K Q1 Q2, यहाँ पे R21 का आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ऊपर R21 वेक्टर हो जाएगा अलोंग BA। अब आप खुद ऑब्जर्व करो कि आपके पास एक F21 है और एक F12 है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है आपके पास, सिंपल, दोनों है इक्वल ही, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे क्या है R2 माइनस R1, यहाँ पे क्या होगा R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, और नीचे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ही है, तो अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन भी लोगे मैग्नीट्यूड में वो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो सिर्फ यहाँ की वजह से हमारे पास चेंज आया। सो वी कैन से दैट कि जो F21 वेक्टर है दैट इज नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर, इजीली बोल सकते हो। और ये आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड लॉ है, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो एक तरह से हम ये क्या बोल सकते हैं कि कूलम ने जो ये फोर्स का फॉर्मूला दिया था ये वेरीफाई हो गया है, क्योंकि इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें वेल नोन एक रिजल्ट पता चल गया है, न्यूटन के लॉ को इसने जस्टिफाई कर दिया है। दैट मीन्स कूलम क्या था, वो सक्सेसफुल हो गया था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज के फॉर्मूला को कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या है, अब हम यहाँ पे चार्जेस के लिए हम बोल सकते हैं कि चार्जेस अगर सेम साइन के होंगे देन देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, चार्जेस अगर ऑपोजिट साइन के होंगे देन देयर विल बी ए अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये सिंपल हम स्पेशल केसेस बोल सकते हैं कि अगर आपके पास जो चार्जेस हैं, चलो केस ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट केस हम लेकर देखते हैं कि हम बोलते हैं कि जो Q1 एंड Q2 हैं दोनों सेम साइन के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे वो तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ना, हमारे पास प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हो कि इस केस में जो हमारे पास फोर्सेस लग रही होंगी, देखो डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये A है और ये B है, मैंने क्या बोला है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे दोनों मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी हमारे पास। सेकेंडली क्या है, अगर हम अब निकालना चाहते हैं, अच्छा अगर अब मैं ये चाहूँ कि इस केस में F21 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देखो ये क्या था F21 और ये था F12,
2 1 की इधर आ रही है ना, और ये किसके अलोंग है, r12 वेक्टर के अलोंग है, क्योंकि r12 क्या था, a से b, मतलब ये भी जस्टिफाई हो गया कि f21 किसके अलोंग है, r12 वेक्टर के अलोंग है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड केस लेके चलती हूँ, सेकेंड केस में मैं क्या लेती हूँ कि अगर जो चार्जेस हैं दैट आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी। देखो अट्रैक्टिव कैसे आती है, हम क्या बोल रहे हैं अब कि Q1 एंड Q2 दोनों क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइन के हैं। ऑपोजिट साइन होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। देखो डायग्रामेटिकली कैसे होगा, ये अगर पॉइंट A चार्ज था, ये चार्ज B था, लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, कि यहाँ पर फोर्स क्या थी, F12 वेक्टर थी, यहाँ पे फोर्स क्या है आपके पास, F21 वेक्टर है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो F12 वेक्टर है ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मुझे F21 वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो वो क्या हो गई, देखो A से B तक जाने का डिस्टेंस क्या था, R12 वेक्टर था। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट होगी, दैट मीन्स डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ R12 हो गई। तो यहाँ से भी हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो क्या थी हमारे पास, एक दूसरे की नेगेटिव थी। ठीक है, क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमने कंप्लीट एक एनालिसिस कर लिया है कि अगर हमें वेक्टर नोटेशन में वो पूछेंगे तो कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। उसकी हेल्प से आप इजीली फोर्स को, कूलम्बिक फोर्स को लिख सकते हो वेक्टर नोटेशंस में, राइट। अब सेकेंड थिंग क्या है आपके पास कि अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि डिफाइन करो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K(Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर अगर मैं एक कंडीशन इंपोज करती हूँ, देखो मुझे क्या करना है, चार्ज को 1 प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या इंपोज करती हूँ कंडीशन, लेट अस सपोज दैट बोथ द चार्जेस आर इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर एंड इफ फोर्स इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अगर मैं ये तीनों कंडीशंस को इस इक्वेशन में इंपोज करती हूँ तो देखो क्या आएगा, फोर्स को पुट कर देते हैं 9 × 10⁻⁹, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। यहाँ पे Q1 Q2 की जगह मैं क्या पुट करती हूँ, Q, मतलब ये आ जाएगा Q² और डिस्टेंस की जगह 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q² क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स Q हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ±1 कूलम्ब आ जाएगा। तो हमें भी तो यही प्रूव करना था कि चार्ज को क्या प्रूव करना है, 1 कूलम्ब प्रूव करना है। तो ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं इसी को अगर हम थ्योरेटिकली लिख देंगे तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की। कभी भी आपसे कोई ऐसी डेफिनेशन पूछते हैं कि डिफाइन करो यूनिट को, वो भी 1 है उसकी, तो हमेशा क्या करना होता है, फॉर्मूला में आपको चेक करना है कि फॉर्मूला में क्या क्या वैल्यूज पुट करें जिससे आपके पास आंसर 1 आ जाए। और जैसे जैसे आप पुट करोगे उसी चीज को आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग्स में लिख देना है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज आपके पास क्या होता है। ये है आपके पास SI सिस्टम की बात, कि SI सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। बट अगर हम बात करते हैं अपने CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। ठीक है, यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम्ब होती है। और आपको रिलेशन पता होना चाहिए ये कि जो 1 कूलम्ब है दैट इज 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, बिकॉज समटाइम्स आपके पास एग्जाम्पल में स्टेट कूलम्ब में चार्ज की वैल्यू गिवन होती है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ SI सिस्टम, तो आप इजीली इस फॉर्मूला से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर Coulomb's law. So in my next video, I am going to discuss some numerical problems related to the Coulomb's law and quantization of charge.
ठीक है, दोनों के बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी. So if you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon and also share this video with other friends. Thank you so much.